Good morning, class. Yesterday I have taught you about the nephritis, and today we are going to learn about the special type of nephritis, that is glomerulonephritis. It is very important topic. I start from the introduction. Glomerulonephritis, it is an inflammation of the glomeruli, which are the structure in your kidney, which is made up of the teeny blood vessels, and these knots of the blood vessels help to filter the blood and remove the excess fluid in the form of urine. And if the glomeruli are damaged, the kidney will stop working properly and you can go into the kidney failure. So overall, glomerulonephritis, it is a structural part of the kidney, and when the inflammation take place in the glomeruli, it result in diminished kidney function. Next one is definition. Glomerulonephritis, it is a group of disease that injure the part of kidney which will filter the blood. That means the glomerulonephritis in which the inflammation take place inside the glomeruli, and that result the destruction of teeny blood vessels, that is destruction of glomeruli, and which leads to the diminished kidney function or decreased kidney function. जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई एंड द स्मॉल ब्लड वेसल्स. यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है, सो इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ टीनी ब्लड वेसल्स ऑफ और इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ glomerulonephritis. There are different types of glomerulonephritis which I will deal one by one. First one is acute glomerulonephritis. Second one is chronic glomerulonephritis. Third one is IgM glomerulonephritis, or it is also called IgM nephropathy. Next one is membranoproliferative glomerulonephritis. Next, membranous glomerulonephritis. Next one is minimal change nephropathy. So these all are the types of glomerulonephritis. So first is acute glomerulonephritis. It can be a response to an infection like strep throat and abscessed tooth or any dental infection, or it may be due to problems with immune system overacting to the infection. For example, any type of autoimmune disease like in case of systematic lupus erythematosus. So overall इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है. फॉर एग्जांपल स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन, एनी टाइप ऑफ डेंटल इन्फेक्शन, या पर्सन का इम्यून सिस्टम ऑलरेडी लो है, या पर्सन को पहले से ही किसी भी तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने ल्यूपस नेफ्राइटिस में देखा था, उसमें क्या होता है, जो हमारे बॉडीज़ के जो सेल्स होते हैं, पर्टिकुलर सेल्स के ऑर्गन के सेल्स के अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रिपेयर करना शुरू कर देती है, एंड दैट डिस्ट्रक्ट दैट टिश्यू और सेल्स. और वो क्या करते हैं, वो एंटीबॉडी पर्टिकुलर जिस ऑर्गन के सेल्स या टिश्यूज़ के लिए उसके अगेंस्ट में प्रिपेयर होते हैं, वो उस पर्टिकुलर सेल्स या टिश्यू को डैमेज कर देते हैं. सो ये सारे रीज़न हो सकते हैं एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के. और अगर एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को अगर ट्रीट नहीं किया गया प्रॉपरली, उसको सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, देन इट विल कन्वर्टेड इनटू द क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. The chronic form of glomerulonephritis can develop over several years with no or very few symptoms. Chronic glomerulonephritis में आपको यहाँ पे आपको सिम्टम्स कुछ दिखेंगे और कुछ सिम्टम्स बहुत ही स्लो दिखेंगे, यानी कि इसमें जो सिम्टम्स है वो ग्रेजुअली डेवलप नहीं होते, एंड दिस कॉज इरिवर्सिबल डैमेज टू किडनी. और इसके बाद क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने के बाद जो किडनी में जितने भी डिस्ट्रक्शन होते हैं, जितने भी डैमेज होगा, वो सारी चीज़ें क्या रहेगी, इरिवर्सिबल, यानी कि फिर से वापस पहले जो किडनी के जो भी स्ट्रक्चरल पार्ट थे वो पहले के जैसे नहीं हो पाएंगे. सो दिस इज़ द इरिवर्सिबल चेंजेस इन किडनी.
Next type is IgM glomerulonephritis. It is also called IgM nephropathy, and in this immunoglobulin M create an immune complex and it is deposited in the mesenterium of the kidney. So first we will know what is the mesenterium. mesenterium क्या है हम सबसे पहले ये जानेंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं mesenterium. mesenterium it is a space which is continue with the smooth muscle of arterioles. जो इस mesenterium होते हैं वो जो arterioles होती है उसका ही ये continuation है. एंड इट इज़ आउटसाइड द कैपिलरी ल्यूमन. ये कैपिलरी ल्यूमन्स के बाहर होते हैं लेकिन ये कैपिलरीज से घिरे हुए होते हैं. मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये मिडिल में होते हैं, कैपिलरीज के मिडिल में होते हैं. मतलब ये कैपिलरीज से चारों तरफ घिरे होते हैं लेकिन ये कैपिलरी के बाहर होते हैं. तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो आपको पर्पल वाला जो पार्ट दिख रहा है, दिस इज द मेसेंजियम. सो ये जो पर्पल वाला जो आपको ये पार्ट्स दिख रहा है, दिस इज़ द मेसेंजियम. ये जो पार्ट है ये मेसेंजियम का पार्ट है. मैं आपको एक बार डायग्राम को जूम करके दिखा रही हूँ. ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ द मेसेंजियम. तो मेसेंजियम इसका नाम क्यों है? बिकॉज इट इज़ इन द मिडिल एंड बिटवीन द कैपिलरीज. ये कैपिलरीज के बाहर होती हैं, कैपिलरी ल्यूमन्स के बाहर होती हैं, लेकिन ये कैपिलरीज से घिरी हुई होती है. कैपिलरी ल्यूमन क्या होता है? ल्यूमन के बारे में मैंने बताया था, कोई भी पतली सकरी नली के अंदर की जगह है ना. तो ये कैपिलरीज की ल्यूमन के बाहर होते हैं लेकिन ये कैपिलरीज से घिरे हुए होते हैं. यानी कि ओवरऑल कैपिलरी के अंदर में ये नहीं होते, कैपिलरी के बाहर होते हैं और इनके चारों तरफ क्या होती है? कैपिलरीज होती है. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है? मेसेंजियम. और यहाँ चारों तरफ यहाँ पे कैपिलरीज है. सो दिस इज द मेसेंजियम. So in this type of chronic glomerulonephritis, immunoglobulin M create an immune complexes and deposited in the mesenterium of the kidney. तो इस पर्टिकुलर टाइप के chronic glomerulonephritis में क्या होता है कि एक जो इम्यूनोग्लोबिन M है वो एक इम्यून कॉम्प्लेक्स क्रिएट करती है, एबनॉर्मल इम्यून कॉम्प्लेक्स. और वो कहाँ पे डिपॉजिट होता है? मेसेंजियम में डिपॉजिट होता है. एंड इन्फ्लामेशन ऑफ दीज डिपॉजिट डैमेज द किडनी. और जितना ज़्यादा वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता जितना ज़्यादा वहाँ पे डिपोजिशन होता जाएगा इम्यून मटेरियल्स का, डिफेक्टिव इम्यून मटेरियल्स का, उतना ज़्यादा इन्फ्लामेशन होगा. एंड इन्फ्लामेशन कॉज डैमेज to the kidney and filters causing protein and sometime blood also leak out from the kidney into the urine and which is called hematuria. तो ये इसमें क्या होता है, जो इम्यूनोग्लोबिन जो M है वो क्या करता है? डिफेक्टिव इम्यून मटेरियल्स हैं वो प्रोड्यूस करता है और वो मटेरियल्स मेसेंजियम में जाके कलेक्ट होता है, डिपॉजिट होता है. और जितना ज़्यादा डिपोजिशन डे बाय डे इंक्रीज़ होता जाता है, जितना ज़्यादा वहाँ पे एक्यूमुलेशन बढ़ता जाता है, कलेक्शन, वैसे वैसे इन्फ्लामेशन होना शुरू होता है. और इन्फ्लामेशन होने की वजह से किडनी भी डैमेज होती है, साथ ही साथ प्रोटीन का लीकेज होने लगता है और समटाइम्स जो ब्लड है वो भी यूरिन में आने लगता है, जिसको कि हम हेमेचूरिया बोलते हैं. Next one is membranoproliferative glomerulonephritis. Glomerules which is made up of membrane, the teeny blood vessels which filters the blood. जो glomerules हैं वो एक membranes के बने होते हैं, जो इस प्रकार हम ये बोल सकते हैं कि ये एक teeny blood vessels हैं जो कि क्या करते हैं? ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं. एंड द मेसेंजियम के बारे में अभी मैंने आपको बताया, विच प्रोवाइड द सपोर्ट टू द ग्लोमेरुलाई स्ट्रक्चर. So in membranoproliferative glomerulonephritis, the membrane and mesenterium both are affected and damaged. तो membranoproliferative glomerulonephritis में क्या होता है? यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको क्लियर है क्योंकि glomerulonephritis है यानी कि ग्लोमेरुल्स में इन्फ्लामेशन हो रहा है. एंड membranoproliferative का मतलब क्या है? मेसेंजियम में एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन और इन्फ्लामेशन हो रहा है, यानी कि इसमें ग्लोमेरुल्स जो हैं वो भी अफेक्टेड होंगे, उनमें भी इन्फ्लामेशन होगा. और मेसेंजियम जो है उसमें भी इन्फ्लामेशन होगा और दोनों ही मेसेंजियम और ग्लोमेरुल्स दोनों ही अफेक्टेड और डैमेज होंगे. नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस
and second one is minimal change nephropathy. So membranous glomerulonephritis, just membrane of glomerulus is damaged and mesangium is not affected. इसके पहले जो हमने टाइप पढ़ा था, कौन सा टाइप था? मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है, मेसेंजियम और ग्लोमेरुल्स दोनों ही अफेक्टेड और डैमेज होते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट टाइप है मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसमें मेसेंजियम अफेक्ट नहीं होता है, इसमें ओनली जो ग्लोमेरुल्स हैं वो डैमेज होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मिनिमल चेंज नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी का मैंने बताया, पैथी अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में लगा है दैट इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट। तो यहाँ पे नेफ्रोपैथी है मतलब नेफ्रॉन डैमेज हो रहे हैं। सो मिनिमल चेंज नेफ्रोपैथी, इफ अ सैंपल ऑफ किडनी टिश्यू इज एग्जामिन्ड अंडर द माइक्रोस्कोप इन दिस टाइप ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इट लुक्स एसेंशियली नॉर्मल। अगर इस टाइप के ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में अगर हम किडनी बायोप्सी के थ्रू अगर हम कुछ स्मॉल पार्ट अगर हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए लेते हैं तो इसमें क्या है, जो टिश्यूज है वो बिल्कुल हमको नॉर्मल दिखाई देगा। सो दिस इज़ द मिनिमल चेंजेस एंड द सिम्टम्स ऑफ ग्लोमेरुलाई कैन स्टिल बी प्रेजेंट। लेकिन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के जो सिम्टम्स हैं वो फिर भी प्रेजेंट होंगे। भले ही हमको जब हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे उस टाइम पे हमको भले ही कम दिखाई देगा, उसमें ज़्यादा पैथोलॉजिकल चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जो सिम्टम्स हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के वो आपको पेशेंट में दिखाई देगा। दिस इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इन चिल्ड्रन। जो चिल्ड्रंस हैं उनमें सबसे कॉमन टाइप का ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का टाइप है जो कि देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट, कॉसेस ऑफ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो इसके पहले मैंने नेफ्राइटिस में भी आप लोगों को कॉसेस के बारे में बताया था, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी। तो बस मैं इसको बस एक बार रीड आउट कर रही हूँ, क्योंकि इसका जो डिटेल है वो मैंने आपको नेफ्राइटिस में बताया है जो लास्ट जो मेरी क्लास थी उसमें। सो फर्स्ट वन इज़ स्ट्रेप थ्रोट, systematic lupus erythematosus, sometime an autoimmune disease also cause nephritis or glomerulonephritis. Good posture syndrome, it is also an autoimmune disorder where the antibody attack the kidney and the lung tissue. Polyarteritis nodosa, it is an inflammation of the blood vessels which cause injury to the organ system. Amyloidosis, it is a deposition or buildup of the abnormal protein inside the kidney or in the mesangium. Wegener granulomatosis, the blood vessels inflammation which is also called vasculitis. Certain non-steroidal anti-inflammatory drug like ibuprofen which also cause acute type of glomerulonephritis. Next cause is focal or segmental glomerulonephritis. The glomeruli are sclerosed or scarred. Focal means that only some of the glomeruli are affected. जो ये जो फोकल एंड सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, फोकल में हम क्या बोल सकते हैं कि कुछ ग्लोमेरुल्स जो हैं ग्लोमेरुलाई हैं वो अफेक्टेड और डैमेज होते हैं, और सेगमेंट हो सकता है। सेगमेंटल मतलब एक पर्टिकुलर कोई पार्ट इसमें अफेक्टेड या डैमेज हो सकता है, होल ग्लोमेरुलाई डैमेज इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज IgA glomerulonephritis. It is one of the antibody produced by the immune system to fight the infection, and in IgA glomerulonephritis it settles or become deposited inside the kidney. जैसे अभी हमने IgM glomerulonephritis में देखा था, सेम वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, IgA क्या करता है, डिफेक्टिव एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है जो कि मेसेंजियम में जाके डिपॉजिट होने लगता है, एंड दैट डिपॉजिट कॉज इन्फ्लामेशन एंड डैमेज टू द किडनी। इन्फेक्शन, एनी टाइप ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, किसी भी तरह का इन्फेक्शन है ऑलरेडी जो बॉडी में प्रेजेंट है वो सर्कुलेशन के थ्रू हमारे जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम में स्प्रेड हो सकता है, पहुंच सकता है, और वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इम्यून डिसीज, फॉर एग्जांपल लूपस सिस्टमैटिक इरिथमेटस, a chronic inflammatory disease which may affect many part of the body including skin, joint, kidney, blood cells, heart and lungs.
नेक्स्ट वन इज बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस और समटाइम वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में क्या है, सेम ये वही जैसे कि सिस्टमैटिक इन्फेक्शन है, जैसे अभी इसके मैंने पहले बताया है ना, किसी भी तरह का इन्फेक्शन, तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है। अगर पर्सन को एंडोकार्डाइटिस यानी कि एंडोकार्डियम जो लेयर है हार्ट की, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, तो वो इन्फेक्शन आगे सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ जा सकता है, यूरिनरी सिस्टम में, और वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करके ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज कर सकता है। लेकिन अभी तक बहुत सारी जो चीज़ें हैं इसके बीच का कनेक्शन अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि किसी भी बॉडी पार्ट में अगर किसी भी एक जगह पे इन्फेक्शन है, किसी भी एक प्लेस पे, ऑर्गन में, टिश्यू में, तो वो सर्कुलेशन के थ्रू क्या होता है, सर्कुलेट होता है, और अदर जो सिस्टम है, बॉडी पार्ट है, उनको भी अफेक्ट करता है। वायरल इन्फेक्शन लाइक HIV, immunodeficiency, hepatitis B, hepatitis C can also cause or precipitate the कंडीशन ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी कि कुछ वायरल इन्फेक्शंस डिसीज़ भी है, जैसे कि हेपेटाइटिस है, HIV है, ये भी क्या करते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को ट्राइगर्स करते हैं, यानी कि ये उस पर्टिकुलर कंडीशन को अराइज होने में और बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट वन इज रिस्क फैक्टर, कंडीशन लाइकली टू कॉज स्कारिंग ऑफ द ग्लोमेरुलाई। ऐसे कौन कौन से कंडीशन है जो कि ग्लोमेरुलाई में डैमेज, डिस्ट्रक्शन और स्कार फॉर्मेशन होने को और ट्राइगर्स करते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि बढ़ावा देते हैं। फर्स्ट वन इज़ हाई ब्लड प्रेशर बिकॉज इट कैन डैमेज द किडनी एंड इम्पेयर देयर एबिलिटी टू फंक्शन द नॉर्मली। सेकेंड, डायबिटिक किडनी डिसीज़, ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो किडनीज है वो डैमेज होने लगती है, दैट नेफ्रॉन्स डैमेज होने लगते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अनदर रिस्क फैक्टर आर पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। अगर किसी पर्सन को ऑलरेडी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है तो वो बहुत हायर रिस्क पे है, उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। डिसीज, एनी टाइप ऑफ डिसीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज, सिफिलिस, एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन कैन ऑल्सो गिव द रिस्क फॉर द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सर्टेन जेनेटिक फैक्टर, समटाइम हेरिडिटरी में हमने पढ़ा था, हेरिडिटरी नेफ्राइटिस। क्रॉनिक और लॉन्ग टर्म ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अगर किसी पर्सन को बहुत लंबे टाइम से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है तो उसको भी होने के चांसेस हैं। लॉन्ग टर्म यूसेज ऑफ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, अगर कोई भी जो भी पर्सन है, पेशेंट है, किसी अनदर डिसीज कंडीशन की वजह से अगर NSAID अगर बहुत लंबे समय से यूज़ कर रहा है, उसको भी होने के चांसेस हैं। पीपल विद सिस्टमैटिक डिसीज लाइक ल्यूपस, हॉटकिन डिसीज इट इज़ अ कैंसर ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू एंड सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट हम लोग कल पैथोफिजियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, देन कॉसेस, रिस्क फैक्टर्स, टाइप्स देखा। टाइप्स को मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रही हूँ। So first type is acute glomerulonephritis, second type is chronic glomerulonephritis, third type IgM glomerulonephritis, fourth type membranoproliferative glomerulonephritis, fifth type membranous glomerulonephritis, sixth type minimal change nephropathy। तो टोटल 6 टाइप्स हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के। नेक्स्ट जो पार्ट है इसके आगे का वो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। जिन लोगों ने भी नेफ्राइटिस का वीडियो नहीं देखा है, 2 पार्ट्स में मैंने उसको यूट्यूब पे अपलोड किया है, जिसने भी नहीं देखा है वो नेफ्राइटिस वाला जो वीडियो है सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद ये जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का टॉपिक है ये आपको समझने में आसानी होगी।